Welcome you all students. Today we will start the new chapter Rural Development. So in this chapter we studied about the majority of the people live in rural areas where they do not have access to the basic necessities of life. Agriculture is the main source of livelihood, especially in India. Mahatma Gandhi once said that the real progress of India did not mean simply the growth and expansion of industrial urban center but mainly the development of the village. तो गांधी जी का ये व्यू है कि जब तक हम लोग अपने विलेज को डेवलप नहीं करते हैं, अपने रूरल एरियाज़ को डेवलप नहीं करते हैं, तब तक रियल सेंस में प्रोग्रेस नहीं होती है. So the idea of village development bring out the center of the overall development of the nation in relevant even today. So more than we all know that 2/3 of the Indian population still depends on the agriculture sector, or we can say the primary sector, because they don't have other option. So 1/3 of the rural India still lives in abject poverty. That is why we have to see a developed rural India if our nation has to realize real progress. So we will develop the rural area. So development of rural area related with rural credit, agriculture, marketing, diversification of agriculture, etc. So in this chapter we have to study about the challenges or the key issues of rural development first. Then the rural credit means the loans they get. We have to classify the rural credits need. Then the sources of rural credit, कैसे कैसे लोन मिल सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे. रूरल बैंकिंग के बारे में a critical appraisal. Then we have to study about the agriculture marketing system, measure initiated by government to improve the agriculture marketing. जो measures लिए गए हैं, major steps government ने लिए हैं किसको, agriculture marketing को strengthen करने के लिए. We have to study them. Then we have to study the problem of agriculture marketing in India. क्या main problems है जो agriculture sector face कर रहा है. Suggestions. Then we have to give the suggestions to improve the agriculture marketing system and alternative marketing channels. किसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस मिल सकता है, उस तरह से मार्केट क्रिएट करना. Then the next important topic is your diversification of agriculture. मीन्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन. जो हम लोग ट्रेडिशनल जो फूड क्रॉप्स से स्विच ओवर करके जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपके टी है, कॉफ़ी है, जिसमें कि शुगर केन है, जिसमें ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, उस तरह से ट्रेडिशनल से हम लोग कमर्शियल की तरफ मूव करेंगे क्रॉप्स प्रोडक्शन में. एंड देन वी हैव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट, कि कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई किया जाए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए. एंड वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग आपके कोर्स से हटा दिया गया है इस बार, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है इसमें. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप स्टडी कर सकते हैं इन रिलेशन विद रूरल डेवलपमेंट. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू स्टडी इन द होल चैप्टर. सो फर्स्ट वी हैव टू just introduce this chapter of rural development introduction. We already discussed this. Agriculture is the major source of livelihood, especially in rural areas, because 2/3 of the population depend on agriculture sector. तो agriculture sector जो है वो एक तरह से बैकबोन माना जाता है, क्योंकि 70 to 75% पीपुल अभी भी किस पे एंगेज हैं, एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे. So the growth and expansion of industrial urban center did not mean real progress in India. तो जैसे गांधी जी का व्यू हम लोगों ने बताया था कि रियल प्रोग्रेस किस सेंस में तब होगी जब हम अपने रूरल एरियाज़ को डेवलप करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं. सो वी हैव टू डेवलप द फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर. इवन इन फर्स्ट 5-year प्लान गवर्नमेंट मोर एम्फसाइज ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर.
सो रूरल डेवलपमेंट इज़ नॉट अ सिंपल टर्म, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. ये कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्रिहेंसिव है. सो इट फोकस एंड एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिया दैट आर लैगिंग बिहाइंड. और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, इंटीरियर एरियाज़, जो अभी भी इतने डेवलप नहीं हो पाए हैं. सो वी हैव टू टॉक अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी. ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. सो ऑल्दो देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू GDP. हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि 17% ही कंट्रीब्यूशन हो रहा है GDP में एग्रीकल्चर सेक्टर से. सो वी हैव टू एक्सपैंड देम. अभी नियर फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो कौन सा सेक्टर ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है? टर्शरी सेक्टर, नॉट द प्राइमरी सेक्टर. There is always a seasonal and disguised unemployment persist in agriculture sector. We have to remove them. So the population depends on agriculture sector still has not exhibited as much decline. So one of the major reason of decline in contribution of agriculture to GDP is fall in public investment in agriculture since 1991. सो रूरल डेवलपमेंट कवर्स द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. तो रूरल डेवलपमेंट को हम कवर करेंगे पूरा एग्रीकल्चर ओवरऑल डेवलपमेंट में, और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनको हम लोग इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें रूरल डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सो रूरल डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस which target betterment in all aspect of rural areas. The developing agriculture implies improvement of rural areas. So this is the first or introductory part of this chapter. Then what is rural areas? So action plan for social and economic upliftment of the rural areas. कि rural areas को कैसे हम इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रॉन्ग करें कि वो आगे और इम्प्रूव हो, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें. सम इनिशिएटिव नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़. तो क्या इनिशिएटिव हम ले सकते हैं जिससे कि हमारा रूरल एरिया डेवलप हो सके? तो इसमें फर्स्ट है डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स. अभी हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. तो सबसे पहले डेवलपमेंट है उसके स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करना है ना. एजुकेशन है मेन इंपॉर्टेंट. तो डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स इज इम्पॉर्टेंट इफ़ यू हैव टू डेवलप द रूरल एरिया. सेकेंड है लैंड रिफॉर्म्स. लैंड में क्या हो, लैंड सीलिंग कर दी जाए और एक तरह से कलेक्टिव फार्मिंग हो जिससे वेस्टेज भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करें, ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें. ये सारे आपके लैंड रिफॉर्म्स में आ जाएंगे या टेक्निकल रिफॉर्म्स में. देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए, है ना. तो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जितने भी हैं आपके, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, क्रेडिट मार्केटिंग सिस्टम है, मीन्स फाइनेंशियल मार्केट होनी चाहिए, या फिर आपके बैंक्स होने चाहिए, रूरल रीजनल बैंक्स होने चाहिए, है ना. और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होनी चाहिए जो लोन्स, टाइमली लोन्स प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को. इंफॉर्मेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए और रिसर्च एंड एक्सटेंशन भी होना चाहिए. तो ये सब आपका किस में आ जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आपका इसी में आ जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ये सारा आ जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मेन जैसे रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है ना, आपके बैंक्स हैं, ये सब इस्टेब्लिश होने चाहिए. स्पेशल मेजर्स में आपके स्पेशल जो प्रोडक्टिव मेजर्स हैं उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले आपका फर्स्ट है पॉइंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स. सो ह्यूमन रिसोर्स बीइंग वेरी बेसिक इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सबसे बेसिक जो नीड्स है, क्योंकि हम लोगों को जो फैक्टर्स चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो उसमें आपके प्रोडक्टिव फैक्टर्स में लेबर भी आता है. तो ह्यूमन इटसेल्फ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड बोथ टाइप ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस इवन इन रूरल एरियाज ऑल्सो. सो वी हैव टू प्रोड्यूस इफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो फर्स्ट वी हैव टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स. इसमें आपका है मेन लिटरेसी, मोर स्पेशली फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. तो इसमें फीमेल लिटरेसी को भी एम्फेसाइज किया गया है, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट. हेल्थ, that is also an important source of human capital. So health addressing both sanitation and public health. तो हम लोग public health और sanitation की भी बात इसी में ऐड करेंगे. डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स. सेकेंड आपका आ गया लैंड रिफॉर्म्स. So land reforms are very urgently required because
लैंड इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक इन रूरल डेवलपमेंट, है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्पेशली लैंड, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जो वेस्ट लैंड है उसको भी कल्टिवेबल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करके उसको भी यूज़फुल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है लैंड रिफॉर्म्स में, जो इंटरमीडिएट्स हैं, जमींदार हैं, उनको हटा देना। डायरेक्ट टीलर्स जो हैं वो उसका बेनिफिट ले सकें, जो फार्मर्स हैं। थर्ड है आपका प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द टीलर्स ऑफ द सॉइल, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना लैंड रिफॉर्म्स में ही आएगा आपके, किसके, टीलर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एंड एलिमिनेटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कल्टिवेटर्स, जो कल्टिवेटर्स हैं उनको उसका बेनिफिट मिल सके, और इसमें जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मिडिल मैन के थ्रू, या आप कह सकते हैं जो इंटरमीडिएटरीज हैं जो वो एक तरह से एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उनको भी हटाना। तो ये आपके पॉइंट्स आ जाएंगे लैंड रिफॉर्म्स में। देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उसका डेवलपमेंट किया जाए। एंड देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे हम लोगों ने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड दोज फैसिलिटीज़ विच आर इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्शन। So infrastructure developed refers to the development of electricity, irrigation, transportation facility, credit and market facilities. We have construction of village road and feeder roads to nearby highway, जो feeder roads हैं वो डेवलप की जाएँ, और कंक्रीट रोड जो हैं आपके उस तरह की रोड्स डेवलप की जाएँ जो नेशनल हाईवे से कनेक्टेड हों। फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए भी आपकी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, है ना, मार्केट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए फार्मर्स को कि कहाँ कहाँ उनके प्रोडक्ट की बेस्ट सेल है। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए इसमें। व्हाट इज़ रूरल एरियाज़ डेवलपमेंट, क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज़। तो क्रेडिट की बात की जाए तो लोन एक्टिविटी, रूरल क्रेडिट टाइप ऑफ लोन फॉर फार्मिंग फॉर जनरेशन पीरियड है, टू परचेज द इनपुट फॉर फार्मिंग हो गया, एंड टू मीट द अदर फैमिली एक्सपेंसेस। तो जनरली प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दोनों पर्पस के लिए ही फार्मर्स लोन लेते हैं। प्रोडक्टिव पर्पस में जैसे टूल्स परचेज करने हुए, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, या फिर आपके फर्टिलाइजर्स परचेज करने हुए उस लिए लोन लेते हैं। या नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस जो है मैरिज हो गया, या कोई और कोई है स्टडीज़ के लिए लोन लिया, इस तरह से भी फार्मर्स लोन लेते हैं। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन, और वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर से, स्पेशली रूरल एरियाज़ में जो आपके फार्मर्स हैं वो या तो बिग लैंडलॉर्ड से लोन लेते हैं, या मनी लैंडर्स हो गए, या ट्रेडर्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, उनसे लोन लेते हैं। ये सारे सोर्सेज हैं इनफॉर्मल के। और फॉर्मल में बैंक्स आ जाती हैं आपकी, जिसमें रीजनल रूरल बैंक्स हो गई, नाबार्ड इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप शॉर्ट नोट आगे भी इसमें पढ़ेंगे अभी। और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टाइमली स्मॉल स्केल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। सो वी आर स्टडीइंग दिस इन डिटेल।